students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 2, teeth and their care. So in this chapter, we shall learn about the different types of teeth and what are their functions and how does we should take care of our teeth. Now let's look at chapter 2, teeth and their care. Now students, get started. Which toothpaste do you use to brush your teeth? Draw the figure of a toothpaste tube, a toothbrush and a tongue cleaner in the given space. Also color them. बच्चों आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं ब्रश करने के लिए? आप यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में टूथपेस्ट, टूथब्रश और टंग क्लीनर के इमेज को ड्रॉ करेंगे और उसे ब्यूटीफुली कलर करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Teeth are very important to us. Our teeth in the mouth help us chew the food well by breaking it into smaller digestible chunks. They help us to speak clearly and give proper shape to our face. टीथ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. टीथ बच्चों हमारे माउथ में होते हैं, लोकेटेड होते हैं, जो फूड को चबाने में, च्यू करने में और उन्हें स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में यानी चंक्स में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं. बच्चों हम टीथ के थ्रू ही साफ बोल पाते हैं और हमारे फेस को प्रॉपर शेप मिल पाती है. नाउ लेट्स लुक दी साइड्स ऑफ टीथ. व्हेन वी आर बोर्न वी डोंट हैव टीथ. It's only after 6 to 7 months that our teeth start growing out of the gums. But the time we grow to and a half years old, we have a set of 20 teeth. This set of 20 teeth is called milk or temporary teeth. बच्चों जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे माउथ में टीथ नहीं होते. जब आप 6 to 7 months ओल्ड हो जाते हैं तब आपके मसूड़ों में से टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं. जब आप 2.5 साल की होते हैं तो आपके 20 टीथ का सेट आता है जिसे हम दूध के दांत, मिल्क के टीथ या टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. At about 6 to 7 years of age, our milk teeth starts falling out one by one. Now to take their place, a new set of teeth starts growing. This set has 32 teeth. Also teeth are called the permanent teeth. फिर 6 से 7 साल के बाद आपके मिल्क के टीथ, दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं. उनके प्लेस पे आपके नया सेट आता है टीथ का जो 32 होता है, जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अमेजिंग फैक्ट. टीथ आर दी ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी डेट कैन नॉट हील देमसेल्व्स. बच्चों टीथ वो पार्ट है हमारी बॉडी का जो अपने आप हील नहीं हो सकता. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ. द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज एक्सटीरियर स्ट्रक्चर. Our tooth have 3 main parts: the crown, the neck, and the root. What is the crown? Crown is the visible part of the tooth above the gums. जो आपको tooth का part दिखाई देता है वो आपका crown part होता है. Neck is the part between the crown and the root. जो crown और root के बीच का part होता है उसे हम neck कहते हैं. Root is the part of the tooth under the gums and inside the bone that keeps the tooth fixed in its place. Root वो part होता है tooth का जो हमारे मसूड़ों से tooth को जोड़ के रखता है, जो invisible होता है, जिसे आप देख नहीं सकते. Now let's see the structure. Enamel, crown, root. That is dentate, neck, pulp, nerves and blood vessels. Now student, next is interior structure. Our tooth have 3 main layers: enamel, dentate and pulp. Enamel is the white or outermost and hardest part of the tooth. It protects the tooth from wear and tear caused by chewing and covers the crown. Enamel एक white outermost सबसे मजबूत पार्ट होता है टूथ का, जो क्या करता है फूड पार्टिकल को वियर करने में हेल्प करता है और आपके क्रोन को भी प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, below the enamel lies dentine. It is yellowish and bone-like but not so hard. It supports the enamel and absorbs the pressure from chewing. जो भी खाना हम चबाते हैं उसके प्रेशर जो होता है डेंटाइन पे लगता है. डेंटाइन बच्चों येलोइश कलर का होता है, बोन लाइक होता है मगर बोन की तरह हार्ड नहीं होता, जो सिर्फ इनेमल को सपोर्ट देता है. इनसाइड द डेंटाइन लाइज पल्प. इट इज द सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ द टूथ दैट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. इट नरिश द टूथ. द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम्स थ्रू होल इन द रूट. बच्चों डेंटाइन के अंदर पल्प होता है जो सॉफ्ट इनर पार्ट है टूथ का, जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं जो टूथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. नर्व्स जो होती है हमारी मसूड़ों के अंदर से रूट तक कनेक्ट रहती हैं. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टीथ. बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ. टू नो अबाउट देम रीड द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे जो टाइप्स होते हैं टीथ के वो 4 टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. Upper jaw, that is lower jaw, that is molar teeth, premolars teeth, canine and incisor.
Now let's read the table. That is the type of the teeth. Next column is numbers. Next is position of the teeth. Last one is description and its function. Let's start with the incisor. ये 8 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. Incisors 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं. 2 front teeth and the teeth on the either side of them. बच्चों ये आपके front teeth होते हैं दोनों ही साइड. इनका काम होता है शेप्ड लाइक अ टाइनी चाइजल विद फ्लैट शार्प एजेस. इनकी शेप जो होती है टाइनी होती है, फ्लैट होते हैं और इनका यूज किया जाता है कटिंग एंड चॉपिंग फूड. यूज फॉर कटिंग एंड चॉपिंग फूड. नेक्स्ट इज कैनाइंस. 4 कैनाइंस 4 होते हैं, 2 इन दी अपर जॉ एंड 2 इन दी लोअर जॉ. 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं. बिसाइड दी इंसाइसर्स. इंसाइसर्स के पीछे शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं. यूज फॉर टियरिंग फूड. फूड को टियर करने में यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स जो 8 होते हैं, 4 इन दी अपर जॉ एंड 4 इन दी लोअर जॉ. 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं. नेक्स्ट 2 कैनाइंस जो कैनाइंस के पास होते हैं, ब्रॉडर एंड बिगर विद रिजेस. बच्चों ये चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं. यूज फॉर बोथ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड. जो फूड को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं. प्रीमोलर्स. नेक्स्ट इज मोलर्स. 12 होते हैं, 6 इन दी अपर जॉ एंड 6 इन दी लोअर जॉ. जो 6 ऊपर 6 नीचे होते हैं. नेक्स्ट टू दी प्रीमोलर्स जो प्रीमोलर्स के बराबर में होते हैं, ब्रॉड होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं विद मोर रिजेस देन प्रीमोलर्स. नाउ इसका काम होता है यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड. जो फूड को ग्राइंड और क्रश करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट. इन सम एडल्ट्स द लास्ट मोलर्स विजडम टीथ आर नेवर फॉर्म्ड. कुछ एडल्ट्स में बच्चों जो लास्ट के मोलर्स होते हैं यानी अक्कल दांत जिसे हम कहते हैं वो आती ही नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिकम अ चैम्प. राइट हाउ मेनी टीथ यू करेंटली हैव इन योर माउथ. डू यू काउंट द मिल्क टीथ दैट हैव फॉलन आउट. नाउ स्टूडेंट्स इन ये आपकी एक्टिविटी आपको खुद करनी है. अब आप बता सकते हैं करंटली आपके माउथ में इनके पेयर्स कितने हैं. इंसाइसर्स के अपर जॉ में कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, लोअर जॉ में भी आप बताएंगे. डू इट योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट इज टूथ डिके. The set of your permanent teeth will remain for life. It will lose or damage our permanent teeth. They cannot be replaced naturally. Hence, we must take care of our teeth in the same way we take care of our body. आपको पता है जो परमानेंट टीथ का सेट होता है वो आपके पूरे लाइफ तक रहता है. बच्चों अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते परमानेंट सेट ऑफ टीथ का तो वो लॉस हो जाते हैं, गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, डैमेज खराब हो जाते हैं. इसे ये नेचुरली भी रिप्लेस नहीं होते. नाउ आपको टीथ का ध्यान भी उसी तरीके रखना है जैसे आप अदर बॉडी ऑर्गन्स का रखते हैं. When we eat, some bits of food get stuck in between our teeth if we do not clean them after eating anything. बच्चों अगर आप कोई भी चीज खाते हैं वो आपकी टीथ में स्टक हो जाती है अगर आप टीथ को क्लीन नहीं करेंगे. Harmful bacteria grow in them giving birth to germs. These germs attack the tooth enamel. They form a sticky coat of yellow layer called the plaque. The tooth starts sticking under this coat. बच्चों फिर उसकी वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोन अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके टूथ पे अटैक करते हैं, नेमल पे, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक येलो कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है जिसे हम प्लेग कहते हैं. प्लेग आपकी धीरे धीरे टूथ को खराब करना स्टार्ट कर देता है. ये आपको शो कर रखिए इमेज. Black color cavity or hole are formed on the surface of the teeth which causes pain. Tooth decay results in bad breath, bleeding gums, toothache and cavities. बच्चों जो आपको ब्लैक कलर की कैविटी दिखाई देती है, होल दिखाई देता है टूथ के अंदर, वो क्या होता है बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा पेन होता है और बच्चों उसकी वजह से बैड ब्रेथ भी आती है, गम्स में से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके दांत में दर्द होने लगता है और कैविटी लग जाती है. नाउ केयर ऑफ टीथ. To stop or protect our teeth from decaying, we should take care of them by following the given tips. अगर आप चाहते हैं आपका teeth खराब ना हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन steps को follow करके. Brush your teeth twice daily, once in the morning, once before going to the bed at night. आप दिन में 2 बार ब्रश करिए, सुबह उठते के साथ ही और रात को सोने से पहले. Make sure that the movement of the brush is in both upward and downward directions. आप upper jaw और lower jaw में अच्छे से ब्रश करेंगे. यूज अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन द फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन योर टीथ. बच्चों आप डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फूड पार्टिकल आपके टीथ में स्टक हो जाता है. क्लीन योर टंग रेगुलरली विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर. आप अपने टंग को भी क्लीन करेंगे टंग क्लीनर की हेल्प से. वॉश एंड रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. अगर आप कोई भी चीज खाते हैं अपने माउथ को रिंस करिए पानी से. अवॉइड ईटिंग टू मनी स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स. आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पीनी चाहिए और स्वीट्स भी कम खानी चाहिए. ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट आर रिच इन विटामिन सी एज दे आर हेल्दी फॉर टीथ एंड गम्स. आपको बच्चों उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी होता है, जिससे आपके दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ होते हैं. विटामिन सी बच्चों खट्टे फलों में होता है.
नाउ विजिट योर डेंटिस्ट एट रेगुलर इंटरवल फॉर डेंटल चेकअप। आपको रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए डेंटल चेकअप के लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज कैविटी मीन्स अ होल इन दी टूथ। एक होल होता है टूथ में, उसे हम कैविटी कहते हैं। इनेमल मीन्स द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ। जो आउटर मोस्ट वाइट पार्ट होता है टूथ का उसे हम इनेमल कहते हैं। जर्म्स मीन्स वेरी स्मॉल लिविंग थिंग दैट कैन कॉज डिजीज। जर्म्स बच्चों वो छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिससे डिजीज हो सकते हैं। फ्लॉसिंग मीन्स द एक्ट ऑफ क्लीनिंग बिटवीन टीथ यूजिंग डेंटल फ्लॉस। फ्लॉसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम टीथ में स्टक हुए पार्टिकल को क्लीन करते हैं डेंटल फ्लॉस के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, आवर टीथ हेल्प अस टू च्यू द फूड वेल एंड गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। हमारे टीथ जो है हमें फूड को अच्छे से च्यू करने में, चबाने में हेल्प करती है और हमारे फेस को शेप प्रोवाइड करते हैं। क्रोन इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ। क्रोन हमारा विजिबल पार्ट होता है टीथ का जो आपको दिखाई देता है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। इनेमल सबसे मजबूत हिस्सा है। इंसाइजर्स आर शेप्ड लाइक अ टाइनी चाइजल विद फ्लैट शार्प एंड्स। इंसाइजर्स जो होते हैं टाइनी चाइजल होते हैं जिसकी फ्लैट शार्प एंड्स होते हैं। वॉश एंड रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग एनीथिंग। बच्चों आपको माउथ को रिंस करना चाहिए कुछ भी खाने के बाद। अवॉइड ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको चॉकलेट्स कम खानी चाहिए और सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पीना चाहिए। Now students, let's do exercise. Exercise A. Pick right the correct option first. The visible part of the tooth is called the crown. C is the right answer. Over time, teeth also get covered with a sticky yellow layer called plaque. B is the right answer. The new set of teeth consists of 32 teeth. B is the right answer. It is the white and hardest part of the tooth. Enamel. B is the right answer. It is the soft part of the tooth that contains nerve and blood vessels. Pulp. C is the right answer. Now students, let's do exercise B. Fill in the blanks. First, dash give shape to our face and make us look smart. Teeth. The new set of 32 teeth, dash in the upper jaw, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Dash is the visible part of the tooth above the gums crown. Neck is the part between the crown and the root. Dash supports the enamel and absorbs the pressure of eating dentine. Now students, let's do exercise C. Match the columns. Column A matches to column B. Premolars. Premolars का काम क्या होता है बच्चों? Now first को हम match करेंगे. That are used to tearing the food, that help in cutting and grinding the food. Premolars help करते हैं food को tear करने में. Match करेंगे D से. Next is cavity. Cavity क्या होती है? हमारी teeth के अंदर जो hollow space हो जाते हैं उसे हम cavity कहते हैं. सेकंड को मैच करेंगे ए से. नेक्स्ट इज कैनाइंस. कैनाइंस क्या करते हैं बच्चों? फूड को क्रश करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. थर्ड को मैच करेंगे बी से. नेक्स्ट है आपका इंसाइसर्स. इंसाइसर्स फूड को कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं. फोर्थ को मैच करेंगे ई से. नेक्स्ट है आपका मोलर्स जो आपके फूड को कट करते हैं और चॉप करते हैं. फिफ्थ को मैच करेंगे सी से. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी. एन एडल्ट हैज 32 टीथ. आउट ऑफ दीज आपको बताना है एडल्ट में 32 सेट होता है परमानेंट टीथ का. इसमें से 8 कितने होते हैं आपके? 8 आपके. नाउ स्टूडेंट्स, 8 होते हैं हमारे इंसाइसर्स. फर्स्ट में हम फिल करेंगे इंसाइसर्स. नेक्स्ट आपको 4 कितने होते हैं आपके? इंसाइसर्स के बाद 4 होते हैं हमारे कैनाइंस. 8 ही हमारे प्रीमोलर्स होते हैं. नेक्स्ट 12 होते हैं हमारे मोलर्स. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.